सुशीला जी, मेरे ख्याल से हम लोगों हेलो। को सिर्फ केस के बारे में बात करनी चाहिए और अपने बारे में नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, वो सबको मालूम है। हमको सिर्फ केस के बारे में बात करनी चाहिए। दैट विल बी गुड। आई थिंक इट सेव्स टाइम आल्सो एंड एनर्जी आल्सो। हेलो। एम आई ऑडिबल? हाँ बोलो। हाँ बोलो बेटा बोलो। नमस्ते सर। एक्चुअली in case अगर in my opinion, when in 2020 when SSR was murdered, my mother was totally broken because it was my mother's favorite hero, favorite superstar. And yeah, I saw my mother crying, and one day, and after that my mother had a flame burning in her heart because she wanted justice for that man, just to protect our generation, just to protect my future and other children's future. That's why many SSRians are fighting just to get their generation's future protected. They are trying to make their generation future, because in Bollywood there is only nepotism, no place for any true talent. The people who are not talented and are only there on the basis of their father or nepotism, they cannot do everything. They are Most of them are even 10th fail and 12th fail, but still get to act in the Bollywood. And who are the real talents like Sushant Singh Rajput? And who are the real talent like Sushant Singh Rajput never get a chance. But Sushant Singh Rajput was lucky because he got a chance. He got a chance because of his hard work. And it's a humble request to all the agencies that kindly improve your facilities and deliver justice to the SSRians, because you are taking so long. You are taking almost 4 years is completed and still there is no justice left. They are not giving any justice for Sushant Singh Rajput, and also they are delaying the time over and over again, because whenever my mother call them, they only say one thing, that we are trying, and kindly contact Delhi office, but still no answer. Even if we contact the Delhi office, we have did this so many times and got the same answer, that we don't have the case. Mumbai headquarters have the case, and after we call on the Mumbai headquarters, they give the same answer that Delhi had a case. They are just trying to troll us. They are trying to make fun of us, and try to make us forget this movement. They want to remove SSR's name from their case list. That's all I want to say. Namaste, Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. सलोनी जी ने अभी कहा कि हम लोगों को इस पर बात करनी चाहिए कि केस क्या हो रहा है। तो मैं एक तो सलोनी जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो नीलेश जी हैं वो मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं कि कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू हो, आदित्य ठाकरे की, रिया चक्रवर्ती की और राजदीप सरदेसाई की। ऐसे लोगों को और बाकी जितने लोग हैं उसमें सबका नाम है उस पिटीशन में, फाइल हो चुका है। 16 अक्टूबर को संभवतः आदेश हाईकोर्ट की तरफ से निकल जाएगा और सीबीआई के लिए भी एक नोटिस जारी हुआ है कि आप अभी तक का स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखिए जहां पर इसकी सुनवाई हो रही है। तो सीबीआई से भी आग्रह किया जा रहा है कि स्टेटस रिपोर्ट रखिए। ये तो है कानूनी लड़ाई सलोनी जी, लेकिन आपको मालूम है कि ये कानूनी लड़ाई के बियॉन्ड है, क्योंकि अगर कानूनी लड़ाई ही सिर्फ रहती तो सीबीआई के पास सारे सबूत लगभग हैं। अब कुछ बचा नहीं है उसमें जांच करने को लेकर के, सारे सबूत हैं, बस उनको बस स्टेटस रिपोर्ट जमा करना है। जमा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन है, और जब पॉलिटिकल कंपल्सन है तो फिर आपको मोर्चा संभालना पड़ेगा। इसलिए ये बात हम लोग उठाते रहना है। इस देश में जन क्रांति जब तक होगी नहीं, नेता डरते हैं वोट के भूत से, कोई डरते हैं लाठी से, पुलिस से, अदालत से। नेता डरते हैं वोट के भूत से, और जब वोट का भूत उनके पीछे पड़ जाएगा, नेता कर देंगे सरेंडर। इसीलिए इस तरह से हम लोगों को ओपिनियन अपने नेताओं तक पहुंचाना पड़ेगा कि साहब देखिए अन्याय हो रहा है, आप ऐसा मत कीजिए। आप सीबीआई को आदेश कीजिए कि जो हत्यारा है उसके खिलाफ कार्रवाई करे,
वरना ये 4 साल का जो आपका अभियान है ना, ये फिजल आउट हो जाएगा और इसे फिजल आउट होने देना नहीं है। इसी तरीके से लड़ाई को लड़ते ही रहना है। एक दो मीडिया वाले बेईमान हो जाएंगे तो सारी मीडिया बेईमान हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। अभी भी वीर विहीन धरती नहीं हुई है, एक से एक ईमानदार मीडिया वाले मौजूद हैं और वो आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। मैं अकेला नहीं हूं, अर्नब हैं, उनके साथ बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपसे बढ़कर के बड़ा मीडिया कौन होगा जो आप स्वयं मीडिया बने हुए हैं। इसीलिए आप सबकी बात में पहुंचाना चाहिए। जी बोलिए, जी बोलिए, मधु बोलिए, मुंडा बोलिए, एसपी मुंडा बोलिए। बोलिए, आपको आवाज आ रही है एसपी मुंडा? एसपी मुंडा बोलिए। दिनेश कुमार आप बोलिए। दिनेश जी आप बोलिए। जी अच्छा हाँ, आप दिनेश बोलिए, एसपी साहब बोलिए, बोलिए।